سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضیلت میں چند احادیث اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب جو حدیث شروع کر رہے ہیں، یحییٰ ابن قزعہ ابراہیم ابن سعد و اپنے والد سے، وہ ابو سلمہ و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون، تم میں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں میں بہت سے لوگ محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تشدید کے ساتھ حدث یحدث تحدیثاً کرنے بات کرنا کے ہوتے ہیں۔ تو محدث وہ شخص جس سے بات کی جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے بات کرتے تھے۔ الرجل الصادق الظن، صادق الظن، یعنی ایسا شخص جو گمان کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے بہت زیادہ سچا ہو، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو تم سے پہلے امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، یہاں کہاں چلا گیا؟ إِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو عمر ہیں۔ اچھا، زکریا ابن ابی زائدہ نے سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کچھ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کان فی من قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، تم سے پہلے بنو اسرائیل کے اندر کچھ ایسے احباب ہوا کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو ایسی باتیں کرتے تھے، یکلمون ای الملائکۃ، وہ ملائکہ سے باتیں کرتے تھے، من غیر ان یکون انبیاء، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ محدث تھے، فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي، میری امت میں اس مقام کا اگر کوئی شخص ہے تم میں سے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال ابن عباس، من نبی ولا محدث، یعنی ابن عباس کے الفاظ میں نبی کا تذکرہ ہے۔ یعنی ایک اور حدیث شریف میں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس حدیث کے اندر بھی وہی مضمون ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو جن سے فرشتے ملائکہ باتیں کرتے تھے۔ میری امت میں اگر کوئی اس مقام کا ہے کہ فرشتے ان سے باتیں کریں یا ان کی سوچ اور ان کی فکر بہت صحیح سالم ہو، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور عمر ابن الخطاب نبوت کے مقام نبوت پر فائز ہونے کے لائق تھے، صلاحیت والے تھے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، عبداللہ ابن یوسف، لیث، عقیل ابن شہاب، سعید بن المسیب، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینما راع فی غنمہ، اس دوران کی ایک چرواہا اپنے بکریوں میں چرا رہا تھا، موجود تھا، عاد الذئب، بھیڑیا اس پر ٹوٹ پڑا، فاخذ منها شاة، اس میں سے ایک بکری اچک لے کر چلا گیا، اور وہ چرواہا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا، حتی استنقذها، یہاں تک کہ اسے چھین لیا، فالقت الیہ الذئب، بھیڑیے نے بکری کو پھینک دیا اور کہا، من لہذا یوم السبع لیس لها راع، کون ہوگا اس بکری کے لیے، کون ہوگا اس کے لیے
दरिंदे वाले दिन में इस बकरी का निगरां कौन होगा मेरे अलावा? आज तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, एक वक्त ऐसे आने वाला है जिस दिन को यौम सबअ कहते हैं, उस दिन मेरे अलावा कोई दूसरा चरवाहा नहीं होगा। इशारा इस बात की जानिब था कि जब लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, लोग अपने बकरियों को छोड़ देंगे, अपने जान की फ़िक्र में होंगे, तो जंगलों के अंदर बकरियों का देखभाल करने वाला कौन होगा सिवाय भेड़िए के? भेड़िया उस दिन बकरियों के चराने का काम करेगा। तो यौम सबअ से मुराद क्या है? फितनों का ज़माना जब आएगा तो लोग अपने जान के पीछे, अपने जान की हिफाजत के लिए पड़े होंगे। बकरियों को कौन देखने वाला होगा? यत्रुकुहन्नास, लोग बकरियों को छोड़ देंगे और बकरियों को जब मारी मारी फिरेंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत के लिए भेड़ियों को मुकर्रर कर देंगे। भेड़िया तो जानते होंगे ना? हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे फिर हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल अन्नासु सुबहान अल्लाह, लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह, ये एक भेड़िया बात कर रहा है। सुबहान अल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नी ऊमिनु बिही व अबू बकर व उमर, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बेज़बान जानवर को भी इस तरह की क़ुव्वत गोयाई अता फरमा सकते हैं। मैं और अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते हैं। मैं, अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते हैं। हालांकि वहाँ अबू बकर भी नहीं थे, वहाँ उमर भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ईमान के साथ अबू बकर और उमर की शिरकत को ज़िक्र किया। वमा सम्मा अबू बकर व उमर। उसके बाद कि इससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत बयान करनी मक़सूद है। यहया इब्न बुकैर, लैस, उक़ैल इब्न शिहाब, अबू अमामा इब्न सहल इब्न हुनैफ, अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह हदीस है कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बैना अना नाइम रअयतु अन्नास उरिज़ु अलैया व अलैहिम क़ुमुस। मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे ऊपर पेश किए जा रहे हैं और उन पर कमीसें हैं। उनमें से बाज़ लोगों की कमीसें तो उनकी छातियों तक हैं, उनमें से बाज़ लोगों की उससे थोड़ा नीचे हैं। वह उरिज़ा अलैया उमर, और मेरे ऊपर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश किए गए और उन पर ऐसी कमीज़ थी इज्तर्रहु, जो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसे घसीट रहे थे, ऐसे उठा रहे थे। क़ालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर ली? तो फरमाया दीन। फरमाया दीन, जिसका कपड़ा ज़्यादा लंबा होगा उसका दीन ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए बच्चियों, अपने कपड़े को लंबा रखो। जितना ज़्यादा कमीज़ छोटी होगी उतना ज़्यादा बेहयाई होगी। हिंदुस्तान में कमीज़ छोटी छोटी करते 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 उसको ब्लाउज़ बना दिया, जिसको ब्लाउज़ कहते हैं आप। और बहुत सी औरतें फ़ख्र के साथ ब्लाउज़ पहनती हैं, साड़ियों पर पहनती हैं, पेट खुला रहता है, पीठ खुली रहती है, हाथ खुले रहते हैं, बाजू खुले रहते हैं, मुकम्मल नंगे होने जैसे होते हैं। तो जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर दीन नहीं है। इसलिए ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा कपड़े की ताबीर ज़्यादा दीनदारी से ली है। तो लिहाजा औरतें और मर्द जितना ज़्यादा कपड़े हिजाब वाला, सत्र वाला पहनेंगे उतना ज़्यादा दीनदारी होगी। आप अभी देख लीजिए कि हिजाब वाली बच्चियां ज़ायद कपड़ा पहनने के लिए इसरार कर रही हैं। जी, ज़ायद कपड़ा पहने, हालांकि हिजाब कपड़ा पहने हुए तो भी है, लेकिन ज़ायद हिजाब का सर का ढांकना, चूँकि सर सतर है, बाल सतर हैं, और बालों का ढांकना भी हिजाब में शामिल है। तो जो औरतें इस कम से कम लिबास पहनेंगी, आप अपनी दुनिया में देख लीजिए कि अक्सर वो बेदीन होंगी या कम इल्म होंगी या जाहिल होंगी या बेअमल होंगी।
कोई आलिमा हो कर के इस तरह ब्लाउज तो नहीं पहन सकती है, आलिमा हो कर के सर खुला हुआ नहीं रख सकती है, कोई आलिमा हो कर के अपने बाजुओं को खुला हुआ नहीं रख सकती है, कोई आलिमा हो कर के अपने बालों को खुला हुआ नहीं रख सकती है। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर दीन ज़्यादा आएगा उसके अंदर हया भी ज़्यादा आएगी। जी, उसके बाद की हदीस सल्त इब्न मोहम्मद और इस्माइल इब्न इब्राहीम, अयूब इब्न अबी मुलैका, मिसवर इब्न मखरमा और कहते हैं कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्म किया गया, जअला यालम, आपको तकलीफ़ महसूस होने लगी, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उनसे कहा, वकान्नहु युजज़िउहु या अमीरुल मोमिनीन, कहने लगे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर वो लइन कान ज़ाका लक़द सहिबता रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसनता सुहबतहु सुम्मा फ़ारक़ता वहुवा अन्का राज़िन। अमीरुल मोमिनीन, आप फिक्र ना करें, आपने तो रसूलुल्लाह की सोहबत पाई है और अच्छी सोहबत पाई है, अच्छा निभाया आपने, फिर आपने रसूलुल्लाह को रुखसत किया इस हाल में कि रसूलुल्लाह आपसे राज़ी थे। सुम्मा साहिबता अबा बकर, फिर आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोस्ती यानी सोहबत इख्तियार की, और अबू बकर के साथ भी आपने अच्छी सोहबत इख्तियार की, अच्छी दोस्ती की। जब अबू बकर को आपने छोड़ा, रुखसत किया, तो अबू बकर आपसे खुश थे। सुम्मा साहिबता सहबतहुम, फिर आपने अपने साथियों के साथ, अपने रफ़ाक़ा के साथ सोहबत इख्तियार की और उनके दरमियान बेहतरीन अंदाज़ आपने इख्तियार किया, हक़ दोस्ती अदा किया। लइन फ़ारक़तहुम, अगर आप उनको छोड़ कर जा रहे हैं तो इस हाल में छोड़ कर जा रहे हैं कि सब के सब आपसे खुश और राज़ी हैं, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। क़ाला अम्मा मा ज़करत मिन सोहबत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि तुमने जो ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनकी रज़ामंदी का, फ़इन्नमा ज़ाका मन्नुन, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ज़ालिका मन्नुम मिनल्लाहि, अल्लाह की जानिब से मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मन्ना बिही अलैया, अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया है। तो अम्मा मा ज़करत मिन सोहबत अबी बकरिन, अब रहा मसला कि आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत का तस्करा किया और उनकी खुशनुदी और रज़ामंदी का तस्करा किया। फ़इन्नमा ज़ालिका मन्न मिनल्लाह, ये भी अल्लाह की जानिब से मेरे ऊपर एक एहसान है, अल्लाह जल्ला ज़िक्रुहु का एहसान है। मन्ना बिही अलैया, अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया कि अबू बकर सिद्दीक़ को मुझसे खुश रखा। व अम्मा मा तरा बी मिन जज़ई, और मेरी जो तकलीफ़ तुम देख रहे हो, फ़हुवा मिन अजलिका व मिन अजल असहाबिका, ये जो जज़ा है, ये जो कुछ तुम देख रहे हो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की वजह से है। वल्लाहि लौ अन्ना ली तिलाउल अर्ज़ ज़हबन लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास क़ुव्वत, वलौ अन्ना ली तिलाउल अर्ज़ ज़हबन, अगर ज़मीन का एक हिस्सा सोने का होता, लफ्तदैतु बिही, मैं उस सोने को दे करके अल्लाह के अज़ाब को फिदिया के तौर पर अल्लाह के अज़ाब से फिदिया के तौर पर वो ज़मीन, सोने की ज़मीन दे देता था। क़ब्ल अन अराहु, उसको देखने से पहले, यानी अज़ाब देखने से पहले, अल्लाह के अज़ाब से मुलाकात से पहले, अगर अल्लाह मेरे पास ज़मीन सोने की होती तो सोने की ज़मीन दे करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता। क़ाल हम्माद इब्न ज़ैद कहते हैं कि अयूब ने इब्न अबी मुलैका से, उन्होंने इब्न अब्बास से नक़ल किया है कि दख़लतु अला उमर बिहाज़ा, मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस हदीस को लेकर के दाखिल हुआ। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवाज़ु थी कि उन्होंने
अल्लाह के अज़ाब को ऐसा इस्तिहज़ार किया हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शख्सियत को नहीं देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो उसको जो है बख्श तो उसको माफ़ नहीं करते हैं। तो हज़रत उमर कितना डर रहे हैं, कितना खौफ महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह के अज़ाब से मुलाकात से पहले अगर ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन का हिस्सा सोने का होता और मैं अल्लाह के रास्ते में मैं उन लोगों को दे करके जो है खुश कर लेता तो खुश कर सकता था। आगे फरमाया यूसुफ इब्ने मूसा, अबू असामा और उस्मान इब्ने ग़यास, अबू उस्मान अन्नहदी, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस नक़ल करते हैं। फरमाते हैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हायतिन मिन हितानिल मदीना। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना के बागों में से किसी बाग के अंदर था। फजाअ रजुलन, एक आदमी आया, फस्तफ्तहा, उसने दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ्तह लहू, उनका दरवाज़ा खोल दो, व बश्शिरहु बिल जन्ना, और उनको जन्नत की बशारत दे दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फबश्शरतुहु बिमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनको बशारत दे दी जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फ़हमिदल्लाह, अबू बकर ने अल्लाह की हम्द की। सुम्मा जाअ रजुलन, फिर एक आदमी आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना, उनके लिए भी दरवाज़ा खोलो और उनको भी जन्नत की बशारत दे दो। यही उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फ़अख़बरतुहु, मैंने उनको बताया जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी थी। उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ़ की। फिर एक आदमी ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और अल्लाह के रसूल ने कहा कि उनके लिए दरवाज़ा खोलो और उनको जन्नत की बशारत दो। अला बलवा तुसीबुहु, एक ऐसे फितने के साथ जो उनको लाहक होने वाला है। तो देखा कि वह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बशारत उनको सुना दी। उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और कहा अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह बेहतरीन पनाह की जगह है। इस बाब की आखिरी हदीस आ रही है यहया इब्न सुलेमान और इब्न वहब और हैवा, अबू क़ैल, रहवा इब्न मअबद कि उन्होंने अपने दादा अब्दुल्लाह इब्न हिशाम से सुना है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वह आखिज़ुन बियदि उमरा, वह उमर इब्नुल ख़त्ताब के हाथ को पकड़े हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे।